Good morning, dear students. Today we will discuss the position and powers of the Prime Minister of India. As in the last video, I told you about the position and powers of the President of India. The President is the nominal head of the state, while as the Prime Minister is the real head of the government. A Prime Minister is the most important and powerful functionary of the state. He can be called as the ruler of the state. The Prime Minister is the head of the Council of Ministers, and all the powers of the President are actually exercised by the Prime Minister. He can rule the country in a way which he thinks the best. He is the architect of the fate of the state. The government can do nothing against his will. तो रियल एग्जीक्यूटिव एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट इन्हें फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इन तमाम पावर्स जो प्रेसिडेंट के भी हैं उनको भी ये फ्रीली एक्सरसाइज करता है, और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है और वो कंट्री का रियल रूलर होता है और वही स्टेट को बनाता है, वही गवर्नमेंट को रन करता है और गवर्नमेंट उसके मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। लेट्स सी द पोजीशन of the Prime Minister of India. The Prime Minister is the real ruler of the country. He is the pivotal of the whole system of government. He occupies a position of exceptional authority. The Prime Minister is vested with the formidable power and influence unless he be a genuine democrat by nature. He very luckily to become a dictator. According to P.T. Nehru, the Prime Minister is the linchpin of the government. देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल रूलर होता है कंट्री का, और वो इम्पॉर्टेंट होता है इस पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में, क्योंकि उसकी पोजीशन और उसके पावर्स, उसकी अथॉरिटी, दे आर अनमैचेबल इन द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके बहुत सारे पावर्स और इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेट होना चाहिए, क्योंकि उसको इतने पावर्स वेस्ट किए जाते हैं, वो डिक्टेटर भी बन सकता है और वो मुल्क की तबाही कर सकता है डिक्टेटर बनकर। इसलिए उसको डेमोक्रेट होना चाहिए और वो मुल्क की तरक्की कर सकता है। जैसे कि नेहरू का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इज द linchpin of the government and the prime minister is central to the formation of the council of ministers, central to death. It means that the prime minister, he is the center around which the council of ministers revolves around, and without him the members of the council of ministers have no entity. प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के बगैर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की कोई शनाख्त नहीं होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द कैबिनेट एंड कैबिनेट ही
इट इज ब्रीथ। वो कैबिनेट को फॉर्म करता है और इसकी लाइफ ब्रीथ प्राइम मिनिस्टर को ही कहा जाता है। और उसकी पोजीशन जो है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट ऑफ हिज पार्टी, कि उसको अपनी पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पार्टी के सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। ही मस्ट मेंटेन क्लोज कंटैक्ट विद पार्टी ओपिनियन, और जो उसको पार्टी ओपिनियंस होंगे, पार्टी की आइडियोलॉजी होगी, पार्टी मेंबर्स जिस पर सेटिस्फाई होंगे, वही वो कर सकता है। वो बिना पार्टी के बाहर या पार्टी की आइडियोलॉजी के बाहर या कॉन्फिडेंस जो लोग उसको अपनी पार्टी का है उनके खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकता है। ही इज टू लीड द पार्टी, नॉट टू ड्राइव इट। ये वो इसका ड्राइवर नहीं होता है पार्टी का, बल्कि वो इसका लीडर होता है। Therefore, the Prime Minister, he occupies an important position in the system of government. And now the appointment of the Prime Minister. Who appoints the Prime Minister? It is the President of India who appoints the Prime Minister, but it is necessary that the President may appoint the person who is the leader of the majority party, the party which gets the majority of seats in the Lok Sabha elections, and the leader of that party is invited by the President of India to hold the office of the Prime Minister. And the Prime Minister, he is usually appointed for the period of 5 years. But actually, the Prime Minister doesn't have any fixed tenure of office. इसका टेन्योर नहीं होता है, हालांकि 5 साल के लिए यूजुअली उसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वो तभी तक ऑफिस में रह सकता है जब तक वो सपोर्ट एंजॉय करेगा मेजॉरिटी पार्टी का। इफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द मेंबर्स of the Lok Sabha lose confidence in the Prime Minister, he has to resign the office. अगर लोकसभा मेंबर्स को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, दे लूज द कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर पर, तो उसको उसी वक्त ऑफिस से रिजाइन करना पड़ता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये 5 साल सिर्फ यूजुअली रखा गया है, लेकिन 5 साल से पहले ही उसको रिजाइन कभी देना पड़ेगा, तब जब उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस या मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का कॉन्फिडेंस। And also the salary and allowances of the Prime Minister. Prime Minister की सैलरी क्या होती है, उसके अलाउंसेस क्या होते हैं। यूजुअली प्राइम मिनिस्टर को वही सैलरी होती है जो बाकी एमपीज को होती है, यानी 275,000 पर मंथ। जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, लोकसभा के मेंबर्स या राज्यसभा के मेंबर्स, जो तनख्वाह जो सैलरी उनको होती है वही तनख्वाह इसको भी मिलती है। हाँ, इससे अलावा ही ऑल्सो रिसीवर्स, जिस तरह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी फंड मिलता है इन एमपीज को, इसी तरह से इसको भी कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंसेस मिलते हैं। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस, उसको फ्री में एक रेजिडेंस मिलती है, फ्री ट्रैवल होता है और मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह उसको मिलते हैं। नाउ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि इसके पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। लेट्स सी नाउ। Immediately after assuming the office, the prime minister has to prepare the list of ministers according to his own sweet will, according to his own will.
According to the 91st Amendment Act, the total number of the ministers, including the Prime Minister, shall not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha. जो ही वो ऑफिस होल्ड करता है, रिज्यूम करता है, तो उसके तुरंत बाद वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है मिनिस्टर्स का अपनी मर्जी के मुताबिक। और मिनिस्टर्स की तादाद कितनी होती है वो 91st अमेंडमेंट एक्ट ने बता दिया है कि जो टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% होना चाहिए। अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है यहाँ पर 545 है, लेकिन 43 इलेक्ट होते हैं और 2 नॉमिनेट किए जाते हैं फॉर एंग्लो इंडियंस, और इसका 15% जो है दैट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, जो लास्ट इलेक्शंस हुए हैं मई 2019 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई उसमें 57 मेंबर्स थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ओके, देन the next function of the prime minister is to distribute portfolios among the ministers. The prime minister distributes work among the ministers. He decides the departments, what department is to be allotted to a particular minister, कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है मिनिस्टर। एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, होम अफेयर्स का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्रीज़ का हो, या इसी तरह से रेलवेज़ का हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो उसका एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है दैट इज़ द मिनिस्टर, और वो पोर्टफोलियो से डिस्ट्रीब्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को दिया जाए। एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके ये भी पावर्स है कि वो मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है, निकाल सकता है। अगर कोई मिनिस्टर उसके सेटिस्फैक्शन के मुताबिक काम नहीं करेगा और वो जवाबदेह है और उससे वो निकाल सकता है, ही कैन आस्क हिम टू क्विट द ऑफिस एंड कैन अपॉइंट समवन एल्स इन हिज प्लेस, कि उसकी जगह पर और किसी को वो अपॉइंट कर सकता है एज मिनिस्टर। जब कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के सेटिस्फैक्शन के मुताबिक सेटिस्फैक्शन के मुताबिक काम नहीं करेगा, देन ही इज रिमूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसकी जगह पर किसी दूसरे को मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन दैट इज प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट। लेट्स सी, द प्राइम मिनिस्टर इज द maker of the cabinet, therefore he is called the keystone of the cabinet arc। जो कैबिनेट है और उसका ये की स्टोन, फाउंडेशन स्टोन यही होता है। he is the leader of also leader of the cabinet, not only the leader of the council of ministers but also he leads the cabinet, therefore he is also known as shining moon among the stars। He is the leader of the cabinet. The cabinet functions under the control of the prime minister. He can call the meetings whenever he likes। वो मीटिंग्स को कॉल कर सकता है जब उसका मन करे, जब वो चाहे। और दूसरी फंक्शन है, और एक फंक्शन है उसकी, प्राइम मिनिस्टर इज ए कोऑर्डिनेटर। The Prime Minister directs the implementation of the policies and coordinates the working of various departments
Inter-department disputes are referred to him for the settlement. वो कोऑर्डिनेट करता है इन तमाम फंक्शंस को जो वेरियस डिपार्टमेंट्स परफॉर्म करते हैं, कि अगर कुछ डिपार्टमेंट्स के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो ऐसे डिस्प्यूट्स को रेफर किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर इनको सॉल्व करता है और इन्हें इन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है इन डिपार्टमेंट्स के बीच जो होंगे. एंड ऑल्सो Prime Minister is link between President and Cabinet. Whatsoever the decisions are taken in the Cabinet, the Prime Minister, he conveys all these decisions to the President of India, as he is the link between the Cabinet and the President. It is the duty of the Prime Minister to convey the decisions of the Cabinet to the President. No minister can discuss a particular problem with the president without the permission of the prime minister. कोई भी मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस नहीं कर सकता है कोई मामला या कोई डिसीजन बिना प्राइम मिनिस्टर के परमिशन के. उससे परमिशन लेना पड़ता है. परमिशन लेना पड़ता है पहले प्राइम मिनिस्टर का. जब वो परमिशन देगा तब ही वो डिस्कस कर सकता है प्रेसिडेंट के साथ कोई भी मैटर. प्रेसिडेंट कैन डिमांड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर regarding the working of administration. The cabinet can discuss any issue with the president only through the prime minister. In this way we can say the prime minister is a bridge between the cabinet and the president, and he keeps president informed about the decisions being taken by the cabinet from time to time. Okay, the next one function of the Prime Minister of India is the Prime Minister of India. He is the principal advisor to the president. As it is said, he is the chief advisor to the president in all matters of the state. The prime minister informs the president regarding all decisions taken by the cabinet, and also in all matters the president seeks advice from the prime minister. Even president cannot enjoy or enjoy emergency powers or impose the emergency without the consultation of the Council of Ministers headed by the Prime Minister of India. जब प्राइम मिनिस्टर उसको बताएगा तब ही वो इम्पोज कर सकता है इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि वो खुद ही कोई काम नहीं कर सकता है बिना एडवाइस के. उसको एडवाइस ज़रूरी लेनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से. एंड इन अपॉइंटमेंट्स, all the appointments are actually made by the prime minister through the president of India. जो भी appointments किए जाते हैं, important appointments, जैसे कि appointment of state governors, ambassadors या members of Union Public Service Commission, और इन तमाम appointments में इससे इसको कंसल्टेशन लेनी पड़ती है. एक्चुअली ये अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर ही करता है, और